ایک بہت اہم مسئلہ ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری شادیاں ٹاکسک ریلیشن شپ پر مبنی ہوتی ہیں. مار دھاڑ کا عنصر شامل ہوتا ہے. پرٹیکولرلی ڈومیسٹک وائلنس کی شکایت کرتی ہیں بچیاں جب اپنے میکے آتی ہیں یا اپنے دوستوں سے یا اپنے گھر والوں سے. لیکن ہمیشہ یہ کہہ کر بھیج دیا جاتا ہے واپس، اچھا بچہ ہو جائے گا نا ایک تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. پھر ایک ہو جاتا ہے، معاملہ صحیح نہیں ہوتا. پھر ایک کے بعد دوسرا ہو جاتا ہے، معاملہ صحیح نہیں ہوتا. تو وہ شادی جو پہلے دوسرے مہینے میں ختم ہو جانی تھی وہ 4 سال بعد ختم ہوتی ہے، اور پہلے صرف 2 لوگوں کی زندگی خراب ہونی تھی، پھر 4 لوگوں کی زندگی خراب ہوتی ہے. بلکہ کچھ سٹیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ حال ہی میں قومی اسمبلی میں 3 سال کے دوران ملک بھر میں خواتین کے خلاف جرائم کی تفصیلات جو ہیں وہ پیش کی گئیں، جس کے مطابق اب یہ آپ تھوڑے سے حیران ہو جائیں گے، 3 سال میں خواتین کے خلاف جرائم پر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں 63,367 کیسز درج ہوئے، ہزار مطلب کیسز جو ہیں وہ درج ہوئے 2019 سے 2021 تک. ہاں جی، 2019 سے 21 کے دوران ملک بھر میں 3,987 خواتین کو قتل کر دیا گیا. اور یہ قتل ہونے والی خواتین کے گھر والے بھی انہیں ایک وقت میں یہی کہہ کر بھیجتے تھے واپس کہ بیٹا چلی جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقتیں ہیں. خواتین کے ساتھ زیادتی کے 10,517 کیسز، جبکہ اجتماعی زیادتی کے 643 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. خواتین پر تشدد کے 5,171 واقعات پر مقدمات درج ہوئے ہیں، اور 1,025 خواتین کو غیرت کے نام پر 1,025 خواتین کو غیرت کے نام پر ہم 2022 میں بات کر رہے ہیں کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ریپورٹڈ ہے بائی دی وے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوا ہو تو وہ دوسری بات ہے. اور 19 سے 21 کے درمیان ہیں کہ 1,000 سے زائد خواتین آج بھی ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر قتل ہو گئیں. قومی اسمبلی میں پیش کی گئی رپورٹ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ملک میں عورت آج بھی پہلے کی طرح یا پھر پہلے سے لٹرلی زیادہ غیر محفوظ ہے. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عورتوں کے خلاف وائلنس کسی طبقے تک محدود نہیں ہے. معروف اداکار ایک ایگزامپل آپ کو دے رہے ہیں، فیروز خان کی مثال لے لیں، جنہوں نے سابقہ اہلیہ کے خلاف بچوں کی حوالگی کی درخواست عدالت میں دائر کر رکھی ہے. اور کل ان کی سابقہ اہلیہ علیزہ سلطان نے سابق شوہر کی جانب سے کیے گئے تشدد کے شواہد بھی عدالت میں پیش کر دیے. اور علیزہ سلطان کا کہنا تھا کہ 3 سے 4 سال میں فیروز خان نے میرے ساتھ جو کیا بتانا نہیں چاہتی تھی. فیروز خان نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا اور میرا بیٹا سلطان بھی اس دوران زخمی ہوا. یہ ساری ان کی باتیں تھیں. اور اداکار فیروز خان کا معاملہ تو obviously ایک مثال ہے. ایسے کئی واقعات معاشرے میں بھرے پڑے ہیں. کیس ان پوائنٹ نور مقدم کیس ہو یا پھر سارا انعام کا جو لیٹسٹ قتل کیس ہے، یہ موٹے موٹے کیسز ہیں جس میں خواتین ایسے شوہروں سے جان چھڑانے کی بجائے ان کا ظلم سہتی رہتی ہیں، اور شوہر کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہونے والی ایسی خواتین کو مکمل قانونی اور سماجی سپورٹ سسٹم دینا پڑے گا. اسی پہ ہم بات کرتے ہیں ماہر قانون سارہ ملکانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سارہ، مطلب ہم عرصہ دراز سے یہ معاملہ سنتے آئے ہیں اور آپ سے بھی کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے، لیکن اتنے انفلوئنشل لوگ جو جانے مانے ہیں، نامور ہیں، مشہور ہے، پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ان کے گھروں میں بھی ان کی بیگمات یا سابقہ بیگمات یہی الزام لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مار پیٹ ہوتی تھی، ڈومیسٹک وائلنس تھا، ایک ٹاکسک ماحول تھا گھر کا. مطلب یہ معاملہ کسی ایک طبقے، کسی تعلیم یافتہ ہونے یا نہ ہونے تک محدود نہیں ہے. اٹ از ایوری ویئر آلموسٹ. جی بالکل عبداللہ، آپ نے صحیح بات کی. اور جو میں نے بھی دیکھا ہے اور جو میں اپنی پریکٹس میں بھی دیکھتی ہوں، کیونکہ ان کیسز کو میں دیکھتی ہوں، تو اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ کسی بھی طبقے میں محدود نہیں ہے، چاہے وہ اپر کلاس ہو، مڈل کلاس ہو، لوور کلاس ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ان ایجوکیٹڈ ہو. آپ نے یہ جو سارے مختلف قسم کے تشدد کا آپ نے ذکر کیا، ڈومیسٹک وائلنس ہو، ریپ ہو، آنر کلنگ تک ہو، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہے. تو جیسے آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ واقعی بہت سیریس ایشو ہے. جو کیسز پولیس کے سامنے جا رہے ہیں، جو عدالتوں کے سامنے جا رہے ہیں، وہ تو بڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پوری تصویر نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی کئی زیادہ ایسے کیسز ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں یہ جو سارے کیسز ہوتے ہیں، اس میں
मुकदमात पुलिस की हद तक तो फिर हम पनिशमेंट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें प्रिवेंशन के बारे में भी अब सोचना चाहिए, क्योंकि जिस स्केल पे ये हो रहा है तो हमें एज अ स्टेट सोसाइटी ये भी सोचना चाहिए कि ये जो तशद्दुद है जिसकी जड़ जो है वो पेट्रियार्की में है, उसको हम किस तरह इसको एड्रेस करें और किस तरह इसको रोकें, क्योंकि इतनी रेट पर वाकयात सामने नहीं आने चाहिए। अच्छा सारा, एक और भी वजह, अब आप प्रिवेंशन की बात कर रही हैं, अब प्रिवेंशन तो तब होगी जब कोई पनिशमेंट होगी, उसकी डिटरेंस कायम होगी तो प्रिवेंशन होगी। मतलब कोई सोसाइटी में खौफ तो आए। अब पेट्रियार्की की आप बात कर रही हैं, घर में ऐसा माहौल है, हम भी आगे जाके यही करेंगे, ये माइंडसेट तब रुकेगी ना कि अगर हम कोई पनिशमेंट्स होते हुए देख रहे हो, कोई खौफ कोई डर तो हो कि पकड़ हो जाएगी, ख़वातीन को भी ये एहसास हो कि भाई मेरे साथ भी कोई है कि आज मैं अदालत जाऊं, आज मैं पुलिस जाऊं और कोई पर्चा दायर करूं तो मेरी हिफाजत होगी, मेरी साइड ली जाएगी। ये पूरा कल्चर मिसिंग है इस सिचुएशन में से। बोलिए, आपने बिल्कुल सही कहा, अकाउंटेबिलिटी का कल्चर हमारा नहीं है, कि ज़्यादातर यही महसूस होता है कि ये अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमें किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और जो दूसरी आपने बात की कि एक तो अकाउंटेबिलिटी की बात है, लेकिन कई दफ़ा जो खासतौर जो औरतें हैं वो जाती हैं पुलिस और वो अदालत जाती हैं किस चीज़ के लिए, हिफाजत के लिए, कि इनकी कोई तो हिफाजत हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस एस्पेक्ट में भी जो हमारा स्टेट का सिस्टम है वो बहुत वीक है। पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, और अगर टाइम पे रिस्पॉन्ड करे तो ये एविडेंस है, ये दुनिया भर में एविडेंस है कि अगर इन तशद्दुद का टाइमली रिस्पॉन्स हो, हम रिस्पॉन्स करें इससे पहले कि नौबत इस बात पे आ जाए कि औरत को कत्ल ही कर दिया जाए, अगर उससे पहले रिस्पॉन्स हो तो फिर हो सकता है कि जो बहुत सीरियस केसेस हैं उनकी प्रिवेंशन हो। लेकिन इस किस्म का रिस्पांस हम अब भी नहीं देख रहे, हालांकि वाकई अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। जी, अवेयरनेस तो बढ़ गई है, बात होती है। आज हम यहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के केसेस का जिक्र कर रहे हैं। सारा ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अब्यूजिव रिलेशनशिप होते हैं, तलाक हो जाती है और उसके बाद बच्चों की कस्टडी टाइप केसेस चलते रहते हैं। लेकिन वो जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है एट सम स्टेज इन मैरिड लाइफ, क्या उसका केस बाद में दायर किया जा सकता है? क्या उस केस को परसू करके किसी को सज़ा हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी नज़र से तो नहीं गुजरा कि किसी को डोमेस्टिक वायलेंस में सज़ा हुई हो या बीवी को मार पीट के चक्कर में वो 6 महीने को जेल में रहा हो। मतलब यहाँ तो लोग मर जाते हैं, उसकी सज़ाएं बड़ी मुश्किलों से होती हैं, तो मार पीट हमें ज़रा गाइड करें इस सिलसिले में। देखिए, ये सबसे पहले तो आपने जो डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र किया, जो मैं भी देखती हूँ कि ज़्यादातर जो खासतौर औरतें आती हैं उनको इमीडिएट तौर पे हिफाजत या जिसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं वो चाहिए होती है। ठीक है, उनका सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। अगर हम घर छोड़ के भी जाएंगे तो किसी ना किसी तरह जो हमारा अब्यूज़र है हमारे पीछे आएगा, तो हम क्या करें। तो इसमें जो सिंध में जो कानून है, सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसका हमने आपके शो पे भी जिक्र किया है, इसमें ये एक प्रोविजन है कि औरत कोर्ट जाकर प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। और पंजाब में भी जो कानून है उसमें भी ये प्रोविजन है। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो, अगर अदालत और पुलिस इस प्रोविजन को सही तरह से इम्प्लीमेंट करे, तो ये कई औरतों और कई बच्चों को सही किस्म की हिफाजत दे सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हालांकि सिंध में तो ये कानून को पास हुए 9 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अदालतों को सही तरह समझ में नहीं आता। ये मैजिस्ट्रेट के सामने हम एप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन उनको फिर भी अभी ये समझ में नहीं है, ये सेंसिटिविटी नहीं है कि इस किस्म के ऑर्डर्स फौरन उनको देने चाहिए और फिर पुलिस को इन किस्म के ऑर्डर्स पे फौरन एक्ट करना चाहिए। अच्छा सारा, एक और मसला ये है जी, एक और मसला ये है, एक लैक ऑफ फेथ का भी अगर हम जिक्र करें कि कोई भरोसा पुलिस या फॉर दैट मैटर जुडिशरी पे भी उस तरह आम आवाम का नहीं है, क्योंकि अगेन वही बात होगी कि सामने कोई ऐसे एग्जांपल्स नहीं आए। केस इन पॉइंट अगर नूर मुकद्दम केस का लिया जाए तो अभी भी इतने ऑप्शंस हैं कि वो अपीलों में बात जो है वो जा सकती है, ऑल्दो सज़ा हो चुकी है। अब ये तो फिर आवाम में ख़ासतौर पे पीपल हु आर सफरिंग, विमेन हु आर सफरिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज़, उनको तो नज़र आ जाता है कि भाई वहाँ तो कत्ल हो गया था और उस बंदे के साथ कुछ नहीं हुआ, तो हमारा कौन हमें कौन देखेगा। तो ये लैक ऑफ फेथ का भी तो फिर कुछ करना चाहिए।
बिल्कुल, और नूर मुकद्दम का केस अगर हम देखे जाएं तो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जिस स्पीड से ट्रायल हुआ और फिर जो सज़ा मिली, ये और केसेस में नहीं होता, क्योंकि जाहिर है और केसेस जो इस तरह होते हैं उनको उस लेवल की पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। जब इतने केसेस होंगे जिसमें आपने जिक्र किया है, तो हर केस को तो मीडिया और पब्लिक इस तरह अप्रोच नहीं कर सकते। तो एतमाद का बहुत बड़ा मसला है। अभी भी हम देखते हैं कि जब कई दफ़ा औरतें हेल्पलाइन कॉल करती हैं या थाने जाती हैं, तो सबसे पहले उनको, और मैं आपको कराची शहर की बात कर रही हूँ जहाँ पर इतनी ट्रेनिंग्स की गई हैं और सिविल सोसाइटी ने इतना काम किया है, और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनको अवेयरनेस तो है कि ये इतना बड़ा इशू है। लेकिन जब हम थानों की बात करते हैं, जब हम हेल्पलाइंस की बात करते हैं, तब भी यही बताया जाता है कि देखिए केस दर्ज मत करें, FIR फाइल मत करें। एक क्विकली ये बात बताएं, एक जोड़ा है जिसका अब्यूजिव रिलेशनशिप था, उसकी तलाक हो गई। आपको पता ही है फिर तलाक के बाद एक दूसरे को ज़हनी अजियत देने के लिए मुख्तलिफ केसेस दायर कर दिए जाते हैं, बच्चों की कस्टडी का, जैसे छोटे बच्चे हैं, माँ से छीनने की कोशिश एट्सेट्रा। क्या माजी में जो डोमेस्टिक वायलेंस किया गया हो औरत के ऊपर, तलाक के बाद वो उसकी FIR या उसका केस फाइल कर सकती है? क्या वो अपने उस मुकदमे को बाद में लड़ सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ शादी में रहते हुए लड़कियाँ नई एक कदम उठाती हैं। अब शादी ख़त्म हो गई है, एक तरफ से साबिका शौहर बच्चों की कस्टडी का केस करके ब्लैकमेल कर रहा है, तो क्या उस पर डोमेस्टिक वायलेंस की FIR कटवाई जा सकती है? बिल्कुल कटवाई जा सकती है। इस तरह जिसको हम कहते हैं कानून में लिमिटेशन, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन, वो तो नहीं है। और जैसे मैंने भी एक केस किया है जिसमें खुला और डोमेस्टिक वायलेंस के दोनों प्रोसीडिंग्स वो साथ साथ चली थी, तो कानून में तो बिल्कुल ये गुंजाइश है और ऐसे केसेस सामने आने चाहिए कि जब औरत छोड़ भी देती है और शादी टूट भी जाती है, उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स हैं वो चलें, और अगर ट्रायल चलना है तो वो चले, और ये होना चाहिए, और कानून में भी ये गुंजाइश है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम ये देखते हैं कि एक जो है, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स इतनी लंबी चलती हैं, अब आप देखेंगे सिंध का कानून है, उसमें ये दिया गया है कि जो ट्रायल है, एक डोमेस्टिक वायलेंस की जो पिटीशन है उसका टाइम फ्रेम दिया गया है कि इसको 3 महीने में अदालत को सुन लेना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम देखते हैं कि 3 महीने में नहीं सुना जाता। मैं एक प्रोटेक्शन ऑर्डर का केस जो फाइल किया था उसको तकरीबन 10 महीने लगे थे सुनने में और रिजॉल्व करने में। तो ट्रायल की तो आप छोड़ें, ट्रायल में तो 2 साल लग ही जाएंगे। तो अब ये औरत जो इतने बड़े अजियत से गुजरी है, ट्रॉमा से गुजरी है, क्या वो इतनी लंबी प्रोसीडिंग झेल पाएगी? ये भी एक सवाल होता है। बहुत शुक्रिया आपका सारा, हमसे बात करने का। ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने की ज़रूरत भी है और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, और हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको बेहतर